has harvested the personal data of the millions of the Facebook users without their consent, resulted in significant fallout in the US. They have used the data of the 3 lakhs users without their consent. And उन्होंने कैसे स्टार्ट किया? The users were asked to take the survey from their application. In that application, they have take the login from their Facebook public forums पे. उसके लिए they have identified कि ये लेफ्टिस्ट हैं या राइट विंग के हैं. राइट विंग के लिए लेफ्टिस्ट को टारगेट करना है. They have to motivate them to join right wing. In this way, they have done the exercise. It was completely activity without the consent of the individual, and Cambridge has also claimed that they used the data for the political message to influence the people. And this case example of the misuse of the individual data and what happens when the data ethics are not followed by the companies. This misuse data impact millions of the people and created a trust-related backlash in the country and regulatory scrutiny. There is one more case which is related to Yahoo database. Yahoo suffered multiple data breaches between 2013 and 14, which affected around 3 billion users' accounts. 3 billion users' accounts. The stolen user information relates about the name, email IDs, date of birth, security question and answers, and hash password. बट याहू ने ये कहा कि ये डेटा ब्रीच नहीं हुआ है टिल 2016. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? इम्पैक्ट ये पड़ा कि यूजर्स को पता ही नहीं चला कि उनका डेटा लीक भी हो गया है और वो मिसयूज होता रहा पहले ही. एंड लॉट्स ऑफ फ्रॉड्स, अदर एक्टिविटी like the manipulation of the records has been happened for the long period. In 2016, Uber suffered also a data breach that exposed the personal data of the approx 50 million users and the driver as well. Users का डेटा लीक हो गया, ड्राइवर्स का डेटा लीक हो गया, जो कि हैक हो गया था बेसिकली. उन्होंने क्या किया उसके रिगार्डिंग? Rather than reporting that case, they have approached the hacker and gave the ransom to delete that data. कि आप डिलीट कर दीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा और इसके लिए हम आपको पैसा दे देंगे. Uber paid around $1 million to the hacker to delete data and keep the breach quiet. This cover-up is basically a violation of the data ethics, integrity, transparency, and accountability. And after that, this case damaged the Uber's reputation across the globe. So these are some scenarios which can be identified how the data is important, the privacy is important, and data ethics should be followed by the companies. If we talk about the IBM's cost of data report 2022, it says that 83% of the organizations surveyed in the report experienced more than one data breaches in their organization. Organizations of every size types are vulnerable to the breaches. चाहे वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे एक प्राइवेट कंपनी हो, चाहे एक पब्लिक कंपनी हो या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर एक लोकल बॉडी हो. Everybody is under the risk. Data breach hurts both the individuals and the organizations as well. Who is the basically sufferer in these breaches? Both the individual and the organization. अब इंडिविजुअल कैसे सफर करता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे सफर करती है? For the individual who is the victim of the stolen data is now more vulnerable about the cyber crime, cyber stalking, data manipulation, identity theft, and the frauds. डेटा चोरी हो गया, कहाँ यूज होगा? कोई ना कोई फ्रॉड में यूज करेंगे या आपको कोई सर्विसेज देने के लिए करेंगे जो इलेजिटिमेट होगी. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या प्रॉब्लम्स आएंगे? दे विल सफर विद द ट्रस्ट फैक्टर्स, सर्विस इंटरप्शंस, बिजनेस ग्रोथ एंड द लिमिटेशन ऑफ द डिलीवरी सर्विसेज. सो दीज आर द challenges. Government has formed a committee, an expert committee under the chairmanship of the Honorable Supreme Court Judge, which was retired at that time, Sri B.N. Krishna, in 2017,
And after that, Supreme Court in August 2017 declared privacy as a fundamental right. And on that basis, government has introduced one bill, Personal Data Protection Bill in 2019, introduced in Parliament and was withdrawn by the government in August 2022. And after that, government again introduced the Digital Personal Data Protection Act bill and got assent from the President on 11th of August 2023. And this act came into the picture. However, if we talk about the existing provisions in Indian laws with respect to the privacy, these are here. If we talk about the Constitution of India, under Article 21, right to life and personal liberty as a fundamental right, comprising right to privacy. So, right to privacy has been defined by the Honorable Supreme Court, as I have already told. Under the IT Act, there are two sections which is related to privacy. Section 72 and Section 43A. Under Section 72, it says that the punishment and the penalty in case of the breach of the confidentiality by the organization, if anything happens in electronic record without the consent. And if we talk about the 43A, the penalty is related to the body corporates mismanaging the sensitive personality. Under the Aadhaar Act, there are lots of provisions with respect to privacy and the protection of the information. Section 28 deals with the security and confidentiality of the information, while the Section 29 talks about its restrictions across the bodies. While Section 330 clarifies that the biometric information is a sensitive personal information. So, SPDI rules of the IT Act will be applicable here and will be dealt as the sensitive personal data of the individual data. So, with this approach, the DPDP had come into the picture. The Act was enacted on 11th August 2023 is a legal framework to safeguard the personal data of the individual and ensure that her personal data processed only with her consent for the certain legitimate usage. The Act has adopted the approach of the SARL, basically simple, accessible, rational and actionable law. Act simple है अपने आप में, anybody can read the act itself and can get the learning from that. Very simple language में लिखा हुआ है, पूरे एक्ट में हर जगह इलस्ट्रेशन दिए हुए हमने प्रॉपरली. आप जब भी पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या किस सिनेरियोज को कैसे हमको हैंडल करना है या क्या क्या केसेस बनते हैं. रेशनैलिटी की हम बात करते हैं, like we have defined the principles of the act and there is a actionable law. Actionable law in this sense कि data fiduciaries जो हैं they have to follow the law with the obligations. उनको हम अभी बताएंगे सारे ऑब्लिगेशन. सर ने भी काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी इन द इनिशियल फेज. So what are the principles of the act? The act talks about the 7 principles: lawful and fair usage of the data. So every data should be used in a fairly manner. Purpose limitation: using data only for the specified purpose for which the consent has been obtained by the data fiduciary from the data principles. आपने जिस पर्पज के लिए डेटा कलेक्ट किया उसी पर्पज के लिए यूज करेंगे. ऐसा नहीं कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया था उन्होंने नमन ने स्टार्टिंग में ही कि आपने कि पिज़्ज़ा लेने के लिए आपने अपना डेटा प्रोवाइड किया. आपने वो डेटा इसलिए प्रोवाइड किया बिकॉज आपको पिज़्ज़ा लेना था. उसका मतलब ये नहीं कि आपको एक फ़ोन कॉल रिसीव करनी थी और आपको इंश्योरेंस देना था. If we talk about the data minimization means collecting only as much personal data as it is necessary to serve that purpose. आपने फॉर्म क्रिएट किया, आपने कहा यूजर आया, डिटेल्स फिल कर दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, फादर्स का नाम बता दीजिए, मदर का नाम बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आपके घर में कितने लोग हैं. वो आया था आपको एक छोटा सा फॉर्म भरवाने कि सर मुझे ये सर्टिफिकेट बनवाना है. आपने उसका पूरा सर्वे कर लिया. रिक्वायर्ड नहीं है. अगर आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए केवल सर्टिफिकेट की ही डिटेल्स चाहिए आपको, जो बेसिक डिटेल्स हैं उसके पीछे. डेटा एक्यूरेसी: ensuring the data is corrected and updated all the time.
You have to ensure that data should always be corrected, जहाँ तक possible है. Storage limitation. Storing of data only as long as it is needed for the specified purpose. किसी पर्पज के लिए डेटा उतने ही पीरियड के लिए स्टोर करना है जितने पीरियड में वो पर्पज सर्व हो जाए. लेट सपोज आपने एक एप्लीकेशन डेवलप की, उसमें डेटा लिया कि मुझे को ये स्कीम प्रोवाइड करनी है यूजर्स को, और स्कीम हो गया, उसका मैटर फिनिश हो गया. कुछ लीगल प्रोविजंस आर आल्सो देयर कि आपको वहाँ रखना है उस डेटा को, देन यू कैन स्टोर दैट डेटा. अदरवाइज डेटा को डिलीट कर दीजिए. You should not process that data after that. And there is a reasonable security safeguards for protection of the data and their data security. पेनल्टीज जो है वो डेटा प्रोड्यूसरी के ऊपर है. केवल एक पेनल्टी है जो डेटा प्रिंसिपल के ऊपर है. तो डेटा प्रिंसिपल के लिए राइट्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि वो एक डिसिप्लिन मैनर में वर्क करे. आगे हम एक बार बताएंगे भी इसको. जी जी वी आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. यस. तो हम जो एक्ट करते हैं, हमारा काम है जो आईसीटी जो करते हैं सिस्टम डेवलप करना या बनाना, जो है ईमेल सर्विसेज है, डाटा सेंटर है वो. ठीक है. उसका जो कंप्यूटेशन है, मान लीजिए कोई भी सिस्टम डेवलप किया हमने कोई भी, तो उसका जो वो डिपार्टमेंट का होता है, हमारा नहीं होता है. तो मुझे को कन्फ्यूजन ये हो रहा है जो डाटा प्रोड्यूसरी है और डाटा जो आपका एक ओनर है ना, और एक डाटा प्रोसेसर है. आपने जो बताया है थोड़ा सा जो बता रहे हैं हाँ नहीं सर. तो फिर उसमें क्या है कि हम मान लीजिए कि एक फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है. फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के लिए हमने कोई इन्फॉर्म, बिजनेस रूल तो वही बताते हैं, डिपार्टमेंट बताता है. ठीक है. तो वो कुछ, और उसके बाद जो है डाटा को जो है हमने किसी गैराज में रखा या स्टेट डाटा सेंटर में हमने रखा. ठीक है. उसके बाद जो है ड्यू टू सम हाउ डाटा जो है, अच्छा डाटा की ओनरशिप भी डिपार्टमेंट की होती है. हम तो खाली उसको जो है आईटी सिस्टम डेवलप करना है जो उसका करते हैं. और वो डाटा जो ड्यू टू सम रीजन जो है जो डाटा वो लीक हो गया या जैसे भी कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ पर हमारा रोल क्या है? एज ए डाटा हम ओनर भी नहीं है, डाटा फिड्यूशरी भी नहीं है. डाटा क्या है? जिम्मेदारी किसकी होगी? कोई जिम्मेदारी हमारी. जैसे क्या ना, कोई भी बीच हुआ तो हमें विभाग पूछ लेता है कि आप सब बताइए ये कैसे गया. तो हमारा तो हमने तो पास पूरा क्रेडेंशियल बेस्ड सिस्टम बना रखा है. तो उसमें कैसे हम करें जब हमारा ये, जब हमारे किसी इंक्वायरी सेटअप होती है क्या आती है तो उसमें करें. और दूसरा एक सेकंड क्वेश्चन को और इसको एड्रेस करिए जो आपने कहा मिनिमम स्टोरेज. तो कभी हमारा कभी डाटा तो हम कभी किसी भी इंफॉर्मेशन हम 20 साल से कर रहे हैं. कंप्यूटराइजेशन जो है डाटा ह्यूज डाटा क्रिएट हो गया, लेकिन डाटा को डिलीट तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हम डाटा जो क्रिएट हो गया वो हजारों 20 साल पुराना डाटा पड़ा, मान लीजिए फाइनेंशियल सिस्टम का डाटा है, यही कंप्यूटराइजेशन है ना, इंफॉर्मेशन जो का, तो हम उससे कभी डिलीट ही नहीं कर पाते क्योंकि विभाग कभी एग्री नहीं करता. तो आप मिनिमाइज इंफॉर्मेशन ये सब चीज़ों का कंसेप्ट हमें ये समझ में आ रहा है कैसे हम करेंगे या आप थोड़ा समझाइए उसको. बिल्कुल सर. तो हम रिलेट कर सकें मतलब थ्योरी को प्रैक्टिकल से कैसे रिलेट. बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ आपको. So there is a code identifiable for the relation to the such data. कोई डेटा प्रिंसिपल जिसका डेटा इन्वॉल्व है बेसिकली एंड यूजर, आप और मैं भी हो सकते हैं एंड यूजर. डेटा प्रोड्यूसर the entity who is defining the purpose and means for the usage of that data is data producer. The two keywords are there, purpose and means. किस पर्पस के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, वो डेटा प्रोड्यूसर हो गया आपका. डिपार्टमेंट ही बता देंगे डेटा मुझे किस लिए चाहिए कि डेटा प्रोड्यूसर. तरीका भी बताता है किस तरीके से करेंगे, डेटा को कलेक्ट करेंगे. एनआईसी का एक सिस्टम डेवलप करेंगे, एनआईसी वाले एप्लीकेशन बना के देंगे, उसके थ्रू उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा. अब एनआईसी कहाँ पिक्चर में आता है? डेटा प्रोसेसर. द एंटिटी हु इज एक्सटेंडेड ऑफ द डेटा प्रोड्यूसर इज डेटा प्रोसेसर. यू आर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट अथॉरिटीज कि हम आपकी एप्लीकेशन डेवलप किए हुए हैं, वो आपसे एक एग्रीमेंट कराएंगे इसके ऊपर, या सिक्योरली इसको रख रहे हैं जितने मेरे को फॉलो करने के लिए कहे गए हैं मैं आपको पास ऑन करता हूँ, आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है. मतलब 90 से 95% केसेस में
फिर डेटा ब्रीच नहीं होगा अगर आप उनको फॉलो करके चलते हैं। तो कॉशियसली आपको डील करना है कि कैसे करना है। क्या डेटा, इसलिए कहते हैं डेटा आपके पास कम से कम रहेंगे, यू विल बी हैप्पी। जितना ज़्यादा डेटा रखेंगे उतना ही ट्रबल में रहेंगे। सरकार तो कहती जरूरत नहीं है इसलिए मत रखिए। आप कह रहे हैं 10 साल का डेटा रखा हुआ है, सरकार नहीं कह रही 10 साल का डेटा रखो। सरकार जितने साल का कहेगी उतने साल का रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ फील्ड्स में कहती है सरकार की फाइनेंशियल डेटा है सर, आपको ये 10 ईयर्स मेंटेन करना है, कोई बात नहीं, मेंटेन कर लीजिए। एक बार लेगेसी डेटा बना के उसको स्टोर करके रख दीजिए, उसको प्रोसेस मत कीजिए अननेसेसरी। जब भी आप प्रोसेस करें विल रजिस्टर द कंसेंट मैनेजर्स who may also work on behalf of the data principal to manage the consent from the data fiduciaries. बिकॉज कई सारी कंपनीज होंगी जो कि उनको कंसेंट चाहिए होगा, यूजर के पास कई सारी कंपनी से सर्विस ले रहा होगा, तो इसलिए मिडिल चैनल हैज बीन डेवलप्ड इन द एक्ट इटसेल्फ टू ईज डाउन द लिविंग प्रोसेस। Now everybody is asking about the processing. What comes under the processing? Capturing, storage, adaptation, retrieval, use, alignment, combination, indexing, sharing, disclosure by the transmission, dissemination or otherwise making available, restriction, erasure और destruction. आपका डेटा को डिलीट करना भी प्रोसेस है। अब कहते हैं पर्सनल डेटा ब्रीच होती कब है? मीन्स एनी अनऑथराइज्ड प्रोसेसिंग, दिस इज द कीवर्ड, एनी अनऑथराइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ द पर्सनल डेटा इज ब्रीच। ब्रीच कैसे भी हो सकता है? अनऑथराइज्ड प्रोसेसिंग हुई, कोई दूसरा पर्सन आगे कर गया तो भी ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर उसके पास एक्सेस नहीं है और उस बंदे ने उसको प्रोसेस कर लिया, इट्स ब्रीच विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, availability of the personal data. So these are the challenges. Now we'll talk about the act applicability. किस सिनेरियोज में एक्ट एप्लीकेबल है, किस सिनेरियोज में एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 3 talks about its applicability. DBDB Act is applicable if the data is collected in digital form. Applicable है if data is collected in non-digital form, like in paper pen, but subsequently digitized, then Act will be applicable. Applicable to the processing outside India for office offering goods and services in India. If data is being processed outside the country, but they are giving the services or goods to the citizen of India within the country, Act is applicable. They are giving service to you. Agency for provision of the subsidies, services, benefits, or the issuance of the certificate, like the licenses or the permits, where data principal have previously consented. So here the consent has already been given by the data principal for applying these to processing by the state or its agency. For the state to perform any function under any law or in the interest of the sovereignty, security, integrity of the country. As we already read in Constitution as well, कहाँ पे restrictions है, जहाँ पे आपके कंसेंट की ज़्यादा बात नहीं की जाएगी। अगर सरकार का कोई वैसा मैटर है तो उसमें सरकार for fulfilling any obligation under any law to disclose any information to the state, provided that the processing is done in accordance with the previous provisions regarding the disclosure of the information in any law. अगर और को चाहिए कोई information जो पर्सनल नेचर है, that can be provided. Based on service during the medical emergency, threat to public health, disaster or public order. लेट सपोज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो हॉस्पिटल आ जाता है, उसका कई सारा डेटा कलेक्ट करना होगा एट ए टाइम कि आपकी एज क्या, कि कंसेंट नहीं मिली है मुझे, मैं डेटा कैसे यूज करूँ। इन दिस सिनेरियो द एक्ट हैज द फ्लेक्सिबिलिटी कि यू कैन यूज द डेटा फॉर हिज लाइफ।
बाद में फैमिली मेंबर से ले लेंगे कंसेंट ऑन दैट. दिस कैन बी डन. In relation to employment processes, in the employment process, there is a contractual agreement between the employee and employer. So these consent will not work there. कि सर मैंने इस चीज़ की कंसेंट नहीं दी थी, आपने मेरी सैलरी क्यों काट ली, या मैंने आपको इसकी कंसेंट नहीं दी थी तो आपने मेरा डेटा ये पब्लिक क्यों कर दिया, यहाँ पे लिस्ट में आपने डाल दिया कि मैं ऑफिस नहीं आता हूँ. तो एम्प्लॉयर कर सकते हैं. And what are their obligations? So first obligation is there to a valid contract with the data processor. Data processor is an extended arm of the data fiduciary who is dealing with the technical part of data fiduciary. So basically, they are providing the facilitation to data fiduciary for doing not technical things. So in this scenario, a valid contract, information to breach. Let's suppose there breach happen, then what should be done? Data fiduciary first identify that breach and will report to the data principal as well as data protection board about that breach. कि ये हो गया है, breach हो गया मेरे साइड से, मुझे पता लगा है, but that's also important. Why? आपका अकाउंट था फेसबुक का, हैक हो गया. फेसबुक कह रहा है कि मैं क्यों बताऊं, मैंने तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को बता दिया है. मैं इंडिविजुअल को बताऊंगा, लॉट्स ऑफ पर्सन्स आर देयर, मेरी तो मार्केट में इमेज खराब हो जाएगी. बट आपको लगता है इमेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या इंडिविजुअल का डेटा? तो इस सेंस में आपका कहा जाता है कि नहीं, आपको ईच इंडिविजुअल को बताना है, इन्फॉर्म करना है, और उसको क्या क्या करना चाहिए, दैट शुड ऑल्सो बी इन्फॉर्म टू हिम. द सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, reasonable security safeguards, I'll explain differently. Intimation of the breach to data principal and data protection board, that I have already told कि जब भी ब्रीच होगा तो आपको डेटा प्रिंसिपल्स को भी बताना है और साथ में बोर्ड को तो बताना ही बताना है, ताकि अगर प्रिंसिपल्स के एंड पे कुछ सॉल्यूशन करना है तो वो कर ले जाएगा. लाइक आपने बोला पासवर्ड लीक हो गए हैं, तो एटलीस्ट आप यूजर को बता दीजिए कि पासवर्ड ब्रीच हो गया है, तो एटलीस्ट वो अपना अकाउंट को एक्सेस नहीं करेगा, अलर्ट मोड में ही रहेगा एटलीस्ट कि मेरे को यूज नहीं करना है या मैं पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ. Dual factor authentication can be implemented there. और when anybody is saying that मेरा डेटा आप डिलीट कर दीजिए, तो उसका मतलब ये नहीं कि डेटा फिड्यूसरी है डिलीटेड दैट डेटा. दैट डेटा शुड आल्सो बी डिलीटेड फ्रॉम द डेटा प्रोसेसर साइड ऑल्सो. वो जो आप ऑब्लिगेशन करेंगे आप जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, दैट विल बी कनेक्टेड, इंटरलिंक्ड. So appropriate data security measures like encryption, obfuscation using virtual tokens mapped to the personal data. ब्रीच होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, उतनी ज़्यादा टारगेट्स होंगे उसके. कि आपने एक एक्सेल की टेबल बना के रखा हुआ है सिंपल डेटाबेस में, हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन में ये डेटा पड़ा हुआ है, इसको हैक करते हैं, उतने ज़्यादा हैकर्स होंगे आपके पीछे. जितना आपने इंक्रिप्शन किया होगा, ऑब्फुस्केशन किया होगा, वर्चुअल मैपिंग की होगी, दे विल फील इट्स अ कम्बरसम प्रोसेस to take the lead. Appropriate measures to control access to computer resources. We are talking about the control access of the system. Measures to have visibility on the accessing of the personal data through logs, monitoring, review, so as to detect unauthorized usage, and at the time of the investigation. ये तो बेसिक चीज़ें हैं, कुछ आई थिंक अभी भी आप लोग कर रहे हैं, इससे बेटर कर सकते हैं आगे चल के. कि आपको लगे कि हाँ पर्सनल डेटा के लिए आपको लॉग्स बनाने हैं, कहाँ कब कब यूज किया है आपने, वो लॉग्स में आप मेंटेन करके चलिए. कि लेट्स सपोज आपके एम्प्लॉय एक्स ने इस डेटा को एक्सेस किया था, उस डेट को क्यों एक्सेस किया था, क्या पर्पस था उनका, लॉग्स में कवर होना चाहिए. देन इट वुड बी इजी एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि ब्रीच कहाँ से हुआ है, अगर हुआ है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हुआ है. To electoral democracy and security of the state and public order. So government may define any data fiduciary to significant data fiduciary. जैसे वो सिग्निफिकेंट बन जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी कुछ सेंस में. क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी गिवन टू देम. द फर्स्ट वन इज अबाउट द पब्लिशिंग द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर. द कंपनी नीड्स टू आइडेंटिफाई अ पर्सन
or a division as a data protection officer who will resolve all the data related queries for the betterment of the organization values. ये देखता है, इस चीज़ को ऐसे एड्स देना स्टार्ट कर देते हैं। इनको इस तरह के और गेम बता देता हूँ मैं, वो उनके वेलबींग के लिए नहीं है। तो बहुत केयरफुली हमको उसको अडॉप्ट करके चलना है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज के साथ खास तौर पे है जो फील्ड्स में काम कर रहे हैं। एंड एज अ गवर्नमेंट वी शुड थिंक अबाउट इट, हम कैसे रिस्ट्रिक्ट करें पार्ट को, कि ऐसी एक्टिविटीज ना हो, कि चाइल्ड की ट्रैकिंग ना हो सके, उनकी बिहेवियर मॉनिटरिंग ना हो सके। बट देयर आर सम केसेस वेयर मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड इन सम टाइम, एंड उनका डेटा जो है वो प्रोसेस करें विदाउट द कंसेंट, लाइक द प्रोटेक्शन ऑफ अबंडेंट चिल्ड्रन। कुछ बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो उस सेंस में कुछ ना कुछ करने के लिए होना चाहिए। हमारा एक्ट में नहीं होगा तो कहाँ होगा फिर? तो उनके लिए भी प्रोविजंस बनाया हुआ है ताकि वो सही जगह पहुंच सकें। उनका डेटा नहीं प्रोसेस करेंगे तो कनेक्ट कैसे करेंगे? For the other matters, like the condition for the registration of the consent manager and its obligation by the Data Protection Board, standards for exemption for the research purposes, statistical purposes, and archival purposes, and appointment and terms and conditions for the Data Protection Board authority, like the chairperson, employees, members, and digital functioning of the board and appellate authority. So, board is totally a digital by design in nature. All the complaints will be received in digital mode and will be resolved digitally. The appeal goes to the TD set and after to the Supreme.